Good day all of you. Today we are going forward chapter number 7, microbial enzyme, page number 80. Microbial enzyme. Now first of all you have to understand what they want to say. Microbes, you all know what are microbes. Okay, bacteria, fungi, mold, virus, all are microorganisms which cannot be seen by naked eyes. And now another word is they have utilized enzymes. Enzymes are also microbes. They are also not able to look, we cannot see them through our eyes. But all microbes are not enzymes. Enzymes are the organisms which are used to catalyze some reaction, some biomedical chemical reaction. Means what? They are like a catalyst, means they help the reaction to wind up, to continue. That is what they want to say. Like we are using various catalysts like calcium ion, zinc ion, cobalt ion. This ion we are using, magnesium, in many biochemical reaction as a catalyst, chemical or biochemical. In both the case we are using this ion molecule as a catalyst. And instead of this, if we are using the enzyme, then what are the benefits of this to replace that chemical from this enzyme? That is what highlighted in this paragraph, that is microbial enzyme. Now nowadays, instead of chemical catalyst, microbial enzymes are used in the chemical industry. These enzymes are active at low temperature, pH and pressure, and due to which energy is saved, and erosion proof instruments are also not necessary. Definitely. When we are using some catalyst, then we have to use some steel, means corrosion free instruments, because they may react with the instrument. But instead of, if you are using some enzyme, microbial enzyme, then this erosion proof instruments can be avoided, because the enzyme won't react with that instruments. Another benefit is that these enzymes works at low temperature, pH and pressure, hence the cost of maintenance is very less. Means to maintain the reaction atmosphere is very less, because the reaction is taking place at lower temperature, pH and pressure. These are the two benefits. Hence unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purification are minimized. When we are using some chemical catalyst, along with the product we require, some maximum byproduct are also created, because they are not specific in their reaction. जैसे कि वो किसी और के साथ रिएक्ट हो जाते हैं कई बार, और जो नहीं चाहिए वो भी रिएक्शन में बन जाता है। फिर उसके बाद जो हमें चाहिए प्रोडक्ट, वो हमें अनवांटेड प्रोडक्ट में से प्यूरिफाई करना पड़ता है, तो वो भी खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप माइक्रोबियल एंजाइम यूज़ करते हो, तो ये एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, वो उतना ही काम करते हैं और उसी पे काम करते हैं जिसके ऊपर उनको करना है, दूसरी चीज़ों के साथ वो रिएक्ट नहीं होते। इसीलिए बाय प्रोडक्ट बनते ही नहीं, या फिर अगर बन भी गए तो वो बहुत ही कम होंगे, तो हमारा प्यूरिफिकेशन का खर्चा भी बचता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद, इन केस ऑफ माइक्रोबियल इंजाइमेटिक रिएक्शन, elimination and decomposition of waste material is avoided and enzyme can be reused. अगर बाय प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो आपको एलिमिनेट करना या डिकम्पोज करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो वो भी एनवायरनमेंट में कचरा पहुंचता नहीं है, क्योंकि कोई वेस्ट मटेरियल है ही नहीं, जो बना वो प्रोडक्ट है, तो आपका एनवायरनमेंट भी गंदा नहीं होता। और उसके अलावा हम इन एंजाइम्स को उन रिएक्शन में से निकाल के वापस से यूज़ भी कर सकते हैं, ये रीयूजेबल होते। लेकिन अगर आपने केमिकल कैटलिस्ट यूज़ किए, तो इन केमिकल कैटलिस्ट को हम रीयूज़ नहीं कर सकते। तो हेंस enzymes are eco-friendly, इसीलिए ये eco-friendly है। Some examples are oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase, ligase, etc. ये रिएक्शन के हिसाब से, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंडक्ट करनी है तो ऑक्सीडोरिडक्टेज यूज़ करो, ट्रांसफ़र करने की रिएक्शन करनी है तो ट्रांसफरेज, पानी निकालने की रिएक्शन करवानी है तो हाइड्रोलेज,
किसी चीज़ को तोड़ने की रिएक्शन है तो लाइसेस, किसी का आइसोमर तैयार करवाना है तो आइसोमरेज, अगर किसी को जोड़ने की रिएक्शन है तो लाइगेज। ऐसा हर इंजाइम की अलग अलग रिएक्शन है, इसलिए उनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए वो एक्शन स्पेसिफिक होते हैं। अगर वो जोड़ने का काम करना है तो जोड़ने का ही करेंगे, वो किसी और के साथ रिएक्ट होकर कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो ये फ़ायदा है। लाइक प्रोसेसेस ऑफ डर्ट और मस्क रिमूवल occurs at low temperature too due to mixing of enzyme with detergent. डेफिनेटली आजकल हम लोग सुनते हैं कि काफ़ी सारे मार्केट में डिटर्जेंट पाउडर है, जैसे एरियल, सर्फ एक्सेल, और इंजाइमेटिक रिएक्शंस बताते हैं। वो बताते हैं कि देखो हमने कुछ इंजाइम डाला है जो कि हमारे कपड़ों में से मैल निकाल लेता है, भले ही उसमें झाग नहीं है ज़्यादा तो भी कम मात्रा में लगेगा और कचरा निकालेगा। तो वो जो रेड और पिंक कलर के बॉल्स आप देखते हैं सर्फ के अंदर आजकल दिखाई देते हैं, वो इंजाइमेटिक इंजाइम्स हैं, वो माइक्रोबियल इंजाइम जो कि कपड़ों में से मैल निकालने में मदद करते हैं एक एट लो टेम्परेचर। आपको कोई बहुत गर्म पानी करके हुए सर्फ डालने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कम टेम्परेचर पर ही कचरा निकाल लेंगे। उसी तरह से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप कैन बी obtained फ्रॉम कॉर्न फ्लोर बाय एक्शन ऑफ इंजाइम obtained फ्रॉम बेसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसेस। अभी ग्लूकॉन डी आता है, फ्रुक्टोज भी शुगर फ्री सिरप होता है। ये दोनों ही चीज़ें आपको जो मिल रही हैं वो कॉर्नफ्लोर यानी मक्के के आटे को इंजाइम के साथ एक्शन करके मिल सकता है। इंजाइम जो यूज़ होंगे वो बैसिलस या स्ट्रेप्टोमाइटिस, ये बैक्टीरिया हैं, इनका यूज़ कर हम लोग मक्के के आटे को सड़ाकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसा सिरप भी बना सकते हैं। द माइक्रोबियल इंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक चीज़ में फंगी यूज़ होती है, प्लांट एक्सट्रैक्ट, टेक्सटाइल कपड़ा बनाने की कंपनी, चमड़ा बनाने की कंपनी, पेपर बनाने की कंपनी, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इन एंजाइम्स का यूज़ कर रही है। देन फूड मटेरियल लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, केक्स, जूस आर अवेलेबल इन वेरियस कलर एंड फ्लेवर। वेदर दिस कलर एंड फ्लेवर आर रियली डिराइव फ्रॉम फ्रूट्स, ये फ्रूट्स में से ही बनाए जाते हैं क्या? तो इनमें से बहुत से फ्रूट्स में से बनाए जाते हैं और बहुत से केमिकली तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या ये नीचे चार्ट दिया है, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड यूज इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स। ये देखो यहाँ पर उन्होंने दिया, ये यूज योर ब्रेन और सर्च, ये तो हमें अवॉइड है, ठीक है, ये कट है, आउट ऑफ सिलेबस है। अब आप सीधा चार्ट की तरफ आइए, ये चार्ट कट नहीं किया है, हाँ, लेकिन इसके पहले का जो ये चार्ट था ये वाला, जिससे मतलब बेवरेजेस कौन कौन से बनते हैं, कौन से, ये वाला कट है, ठीक है, ये चार्ट कट है, बट ये चार्ट है आपको, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने ऑर्गेनिक एसिड्स यानी केमिकल कैसे बनते हैं अलग अलग इंजाइम्स का यूज़ करके वो बताया है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है शुगर एंड बीट मोलेसेस अमोनिया सॉल्ट, शक्कर, बीट का मुरब्बा या अमोनिया सॉल्ट, इसको कौन से माइक्रोब्स, बेरी बैक्टीरियम, कोर्निनो बैक्टीरियम, बेरवी बैक्टीरियम एंड कोर्निनो बैक्टीरियम, ये दो बैक्टीरिया हैं वो यूज़ करते हैं सड़ाने के लिए, और उससे बनता है एल ग्लूटामिक एसिड। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड है इसका यूज़ होता है एजिनोमोटो बनाने के लिए। फिर आता है शक्कर की चाशनी और नमक, इस पर एस्पारगिलस नाइगर नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होगा। आपको जो कंपाउंड बनेगा, एसिड बनेगा, वो है साइट्रिक एसिड, और ये साइट्रिक एसिड खट्टा टेस्ट देता है, इसलिए ये ड्रिंक्स में, टॉफ़ीज़ में, चॉकलेट्स प्रोडक्शन में यूज़ होता है। उसी तरह से ग्लूकोज, कॉर्न स्टिप लिकर, कॉर्न स्टिप लिकर यानी मक्के के बीज जो होते हैं उनको बोलते हैं, जो ऊपर तैर के आ जाते हैं उसका घोल, उसको एस्पार्गस नाइग्रस में डालो, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, और इसका यूज़ होता है कि कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट, ये मिनरल्स बनाने के काम में आता है, और एज अ सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन, उन दवाइयों में जो कैल्शियम और आयरन बढ़ाने की दवाइयाँ बनती हैं उसमें उसको डाला जाता है। फिर मोलेसेस और कॉर्न स्टिप लिकर, मोलेसेस यानी शक्कर की चाशनी, और सेम मक्के के बीज का रस लिकर, इसको लैक्टोबैसिलस डेल्ब्यूर्गी से सड़ाओ, लैक्टिक एसिड बनेगा।
ये यूज होगा नाइट्रोजन के लिए और काफ़ी सारे विटामिन बनाने के लिए। फिर से मोलासेस कौन से मटेरियल है, लेकिन एस्पारगिलस इटेनोनियस से सड़ाया जा रहा है, इटोनोइक एसिड मिल रहा है और ये एसिड यूज होता है पेपर, टेक्सटाइल यानी कपड़े की कंपनी, प्लास्टिक इंडस्ट्री और गम प्रोडक्शन, एडिसिव बनाने की कंपनी में।